Hello, students. We will continue in the next part of Discovering Tut. The saga continues. So, we were at that point. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. So, the work of archaeology that was done in 1922 when Tut's body was discovered. And how did Carter do to research the treasure that was buried with Tut? That was in 1922. And because now in 2005 CT scan is going on right now, the story of CT scan is going on, but the writer A.R. Williams wants to tell even what happened with the Tut's mummy or dead body when it was first discovered in 1922, when Howard Carter, an archaeologist of England, he had searched its jewelry, its golden objects which were adorned with the body, and he had recorded everything, and how he had to cut even the dead body because resin, a traditional resin that actually stuck to the coffin, lower coffin, in form of gold. So he had to remove every part of the dead body. Now, the writer is saying archaeology has changed substantially in the intervening decades. 1922 से लेकर के अब तक 2005 तक जो बीच के दो दशक हैं, इंटरट्वेनिंग जो बिटवीन के जो डिकेड्स हैं, उनके अंदर जो आर्कियोलॉजी है दैट हैज़ चेंज्ड वेरी इंपॉर्टेंटली, इसेंशियली, सब्सटेंशियली और कंसिडरेबली, फोकसिंग less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. So now there is no focus on treasure, how much a treasure it has, कितना खजाना उसके साथ था, कितने गोल्डन ऑब्जेक्ट्स थे. That was done by 1922 in by Howard Carter. But nowadays it is more fascinating or attracting that focus is on more on the attractive details of the intriguing or you can say interesting mysteries of death, कि उसकी डेथ कैसे हुई, that should be find out, at what age the death was, that should be find out, not the treasure what he was buried with. It also uses more sophisticated tools including medical technology, and it is also using sophisticated tools including medical technology also, like x-ray machine, CT scan, and so many other machines, ultrasound machine and other machines. तो स्किल जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, मोर रिफाइंड आप कह सकते हो टूल्स हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. इन 1968 आफ्टर 1922 once it was also examined in between 1922 and 2005, 22 और 2005 के बीच में एक बार फिर से चेक हुआ इसको, एंड दैट वाज चेक्ड इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी. कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी. एक एनाटॉमी प्रोफेसर था जिसने एक्सरे किया, नेम हैज़ नॉट बीन गिवन, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, एंड ही क्लियर्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट. उसने खुलासा किया एक सरप्राइजिंग फैक्ट का. व्हाट वाज दैट? बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, कि जो रेजिन था, जो गम था, जो कि उसकी चेस्ट के ऊपर स्टक किया गया था, केक किया गया था, जमा हुआ था. हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि इसकी जो ब्रेस्ट बोन है और इसकी जो फ्रंट रिब्स हैं, बैक रिब्स भी होती हैं, दे वर मिसिंग. ही डिक्लेयर्ड दैट. सो दैट वाज अ सरप्राइजिंग फैक्ट ही हैड डिक्लेयर्ड. Was it correct or not? That will be revealed in the CT scan, because the results of CT scans are still to come. Now further the writer is adding about the modern technology. Today diagnostic imaging can be done with the computed tomography or CT और CT scan. CT scan की सहायता से आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग है वो की जा सकती है. We can find out the diagnostic or the symptoms or the characters of the disease.
डिजीज़ के क्या लक्षण हैं उसको डायग्नोज करना, दैट कैन बी फाइंड आउट बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे। सीटी स्कैन की सहायता से एक एक्सरे नहीं होता बट बल्कि हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड दैट्स ऑल्सो इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर। क्रॉस सेक्शन के अंदर एक साथ रखे जाते हैं लाइक स्लाइसिस ऑफ अ ब्रेड, जैसे कि जो ब्रेड के स्लाइस हैं, पीसीज हैं, टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, ताकि उनको एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनाया जा सके, रियल बॉडी बनाया जा सके। सो with the help of computer this computed tomography we can even think about that how he looked like at that time. What more would a CT scan reveal of a tut than X-ray? कि जो एक्सरे ने 1968 के अंदर उसके बारे में रिवील किया, उससे ज़्यादा CT स्कैन क्या रिवील करेगा? दैट वाज द बिग क्वेश्चन. एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम? कि अभी भी जो 2 बड़े क्वेश्चन हैं उसके बारे में वेट कर रहे हैं, लिंगर कर रहे हैं, हिडन है, क्या ये इसको क्लियर कर पाएगा? हाउ डिड ही डाई, द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड हाउ ओल्ड ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, डेथ के टाइम पे कितनी एज थी उसकी और वो कैसे मरा? दीज आर द 2 क्वेश्चंस. किंग टट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट. किंग टट की जो डिमाइस है, डेथ है, दैट वाज अ बिग इवेंट, वो बहुत बड़ा इवेंट था. Even by royal standards, even according to royal standards, because he was the last heir of his family. He was the last of his family line. पूरी फैमिली लाइन का जो उनकी लाइन थी, दैट इज वंश था, उसका वो आखिरी मेंबर था. एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी. और उसकी जो डेथ थी वो एक प्रकार से रैटलिंग साउंड थी, एक खोखलापन दर्शा रही थी, दैट देयर इज नो वन नाउ इन देयर डायनेस्टी इन द सीरीज ऑफ रूलर्स. उनके पूरे वंश के अंदर, डायनेस्टी इन हिंदी वंश, दैट इज अ सीरीज ऑफ रूलर्स. सो देयर वाज नो वन नाउ इन द फैमिली ऑफ टट. सो दैट वाज ओनली ए डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी. बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर. लेकिन वो पासिंग अवे कैसे हुआ, कैसे उसकी डेथ हुई, एंड इट्स आफ्टर मैथ, उसकी डेथ के बाद क्या हुआ, कौन राजा बना, दे आर अनक्लियर, वो अभी भी क्लियर नहीं है. एंड टू फाइंड आउट अबाउट हिज डेथ एंड व्हाट हैपेंड देन, even Tut's body was searched, that was CT scan is done, that what happened, to find out the history. Now about his family, कुछ अब उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है कि उसकी फैमिली क्या थी, उसके एंसेस्टर्स, उसके पूर्वज, उसके फादर, ग्रैंडफादर कौन थे, एंड व्हाट दे वर डूइंग. सो एमेनोटॉप थर्ड, Tut's father or grandfather, it is also not clear. Actually he was a grandfather because after him also there was a king. Amenhotep IV was a powerful pharaoh. वो एक powerful pharaoh था. Pharaoh means king or ruler, who ruled for almost 4 decades, जिसने लगातार 4 decades तक 40 साल तक राज्य किया. एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी ऑफ गोल्डन एज, जब उनकी डायनेस्टी, उनके वंश का जो गोल्डन एज था, सुनहरा युग था, 18th, एंड ही वॉज 18th एट द 18th ruler of their dynasty. It means if his son also ruled over and his son also ruled over, you can imagine Tut was 20th ruler of his family line. So his son, so anyhow he there ruled for 40 years, 4 decades. After that his son Amenhotep IV succeeded him, वो उसने उसको सक्सीड किया, उसका सक्सेसर बना, उत्तराधिकारी बना, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट की हिस्ट्री के अंदर एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड है, वो स्टार्ट हो गया. सो व्हाट वाज द स्टैंडर्ड पीरियड दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन एंशिएंट इजिप्ट. द न्यू फेरो, जो नया राजा था, नया रूलर था, प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन, द सन डिस्क. इसने सन डिस्क, सन का जो देवता था, सूर्य का देवता था, जिसका नाम एटेन था, उसको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया, उसकी वर्शिप को प्रमोट कर दिया. चेंज्ड हिज नेम आखेन अटेन, उसने अपना नाम है वो अमेनोटॉप से आखेन अटेन चेंज कर लिया. और द सर्वेंट ऑफ एटेन, ये मानते हुए दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ सन डिस्क गॉड एटेन. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द वर्ल्ड सिटी ऑफ थीबेस टू द न्यू सिटी ऑफ आखेट अटेन. आखेन टेन नेम एंड कैपिटल
आखेटेन, एक नई सिटी का निर्माण किया जिसका नाम था आखेटेन, नोन नाउ एज अमारना, अभी प्रेजेंट में अमारना के नाम से जानी जाती है। एंड ही हैज़ चेंज्ड द रिलीजियस, इजिप्ट की एक रिलीजियस कैपिटल होती थी, दैट वाज थीबेस, उसने उस कैपिटल की बजाय नई कैपिटल बनाई, दैट वाज अखाटेन, known as now Amarna. He further shocked the country by attacking Aman और अमन, उसने कंट्री को और ज़्यादा शॉक कर दिया। कैसे कंट्री को झटका लगा, उसने अमन को, या अमुन गॉड, मेजर गॉड, एक देवता था उस टाइम का, उसको अटैक करते हुए पूरी कंट्री को शॉक में डाल दिया। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसने उसकी जितनी भी इमेजेस थी, मूर्तियाँ थी, वो तोड़वा दी। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसके टेम्पल्स बंद करवा दिए। व्हेन was the ruler of a particular country closes all the temples of particular community, not a particular community but the whole they were worshipping, पूरी जनता है वो उसकी वर्शिप करती है, वो उसके टेम्पल बंद करवा दी, कहने कि मैं ही देवता हूँ और मेरा देवता अटेन है, इसके नाम से ही पूजा होनी चाहिए। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री। सो द पीपल केम टू प्रोटेस्ट हिम, विरोध करना शुरू कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, रे जॉनसन नाम के किसी आदमी ने कहा है कि वो बड़ा ही हॉरिफिक टाइम था, बड़ा डरावना टाइम था उस कंट्री के लिए। द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लेक्चर द साइट ऑफ एंशियंट थीबेज, की जो साइट थी एंशियंट थीबेज की, उसको देख करके उसने बताया, उसने उसके बारे में पढ़ करके बताया, जो कि डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर, जो रिसर्च कर रहा है रिसर्च सेंटर लेक्चर के अंदर, ही टोल्ड दैट वाज अ हॉरिफिक टाइम। ही फर्दर एडिड that the family that had ruled for centuries was coming to an end, कि जिस फैमिली ने इतनी शताब्दियों तक लगातार 20 रूलर्स वर रूलिंग देयर, दैट वाज अबाउट टू एंड, वो एंड होने वाली थी। एंड देन अखनटेन वेंट अ लिटिल वैकी, और उसके बाद अखनटेन थोड़ा सा वैकी हो गया, क्रेजी हो गया, इसेंट्रिक हो गया, पागल हो गया। सो रे जॉनसन said him वैकी, why? Because he had changed first his name, God also, and also closed all the temples of the previous god, also changed capital from Thebes to Akhaten, and that's why he also said that he was Veki, he was cause of his own death, because the public or the people, they opposed him, they protested, and he got killed. So after Akhanten's death, अखानटेन की डेथ हो गई, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड शेमन खेकरे अपीयर्ड, एक शेमन खेकरे नाम का कोई मिस्टीरियस रूलर था, वो अपीयर हुआ ब्रीफली, थोड़े समय के लिए, एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, एंड विदाउट मार्किंग एनी ट्रेस, विदाउट मार्क एनी सिंबल ऑन द कंट्रीज हिस्ट्री, ही एग्जिटेड, एकदम से वहाँ से गायब हो गया। Might be minister of Akhanten, but even the public once again protested that the young prince Tutankhaten, he should be on throne, सिंहासन पे किसको बैठाया जाना चाहिए, प्रिंस को, राजकुमार को बैठाना चाहिए, and his name was Tutankhaten, Aten was god, that was name given by his father. The king Tut, as he is widely known today, आज के दिन उसको किंग टट के रूप में जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटाखा अमुन, अब लड़के ने क्या किया, अपना नाम टूटाखा अटेन से टूटाखा अमुन चेंज कर लिया। अमुन वाज द प्रीवियस गॉड, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, ये मानते हुए कि आई एम द लिविंग इमेज ऑफ अमुन, कि मैं अमुन गॉड का लिविंग इमेज हूँ। एंड ओवरसा अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, एंड ही चेंज्ड, रिस्टोरेशन, रिफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड वेज, पुराने जो तरीके थे उनको रिफॉर्म कर दिया, उन्हीं को लागू कर दिया, जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम के थे, फादर वाली सारी चीज़ें बंद कर दी। बिकॉज द मिनिस्टर्स माइट हैव सजेस्टेड हिम दैट इफ यू वुड ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग्स एज योर फादर वॉज डूइंग, द पब्लिक वुड certainly protest, and that's why he changed totally the old ways. He reigned for about 9 years, 9 साल तक उसने शासन किया, and then died unexpectedly, और फिर अचानक unexpectedly मर गया। That was still a question at what age he was died.
and he was also young at the stage when he was king of the country. Regardless of his fame and speculations about his fate, कि उसकी कितनी प्रसिद्धि है, कितने उसके स्पेकुलेशन है उसकी फेट के बारे में, उसके भाग्य के बारे में, दैट ही वॉज डाइड, ही वॉज किल्ड, ही वॉज मर्डर्ड. सो even he is so famous, even so many speculations, imaginations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. इजिप्ट के अंदर जितनी मम्मी है उन्हीं में से एक टट की मम्मी भी है. इट मीन्स डेड बॉडी आर सो मैनी डेड बॉडीज और मम्मीज आर देयर इन इजिप्ट. हाउ मैनी, नो वन नोस, किसी को नहीं पता कितनी है. द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, लेट 2003 के अंदर, माइट बी दिसंबर, एंड इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड टू फाइंड आउट द मम्मीज. मम्मीज को फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया, शुरू किया गया. एंड दे हैड रिकॉर्डेड टू मेक इन्वेंट्री और अ लिस्ट ऑफ द दोज. दे हैव रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 अब सो फार. आज तक उन्होंने 600 मम्मीज का रिकॉर्ड किया कि दीज आर द पर्सनस मम्मीज, एंड स्टिल काउंटिंग, अभी भी काउंटिंग जारी है. द नेक्स्ट फेज, इससे जो नेक्स्ट फेज था कि सबसे पहले मम्मीज़ को काउंट करना, मम्मीज़ को फाइंड आउट करना. अगला फेज था स्कैनिंग द मम्मीज़ विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन, कि एक पोर्टेबल सीटी मशीन है उसके द्वारा सभी को क्या है, पोर्टेबल, ताकि वो मम्मीज़ के पास भी जा सके. डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, इट्स मैन्युफैक्चरर. इसका जो मैन्युफैक्चरर था नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, उसके द्वारा ये डोनेट की गई थी एंटिक्विटी डिपार्टमेंट को. सो दे वर यूजिंग दिस. नाउ किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड. किंग टट की मम्मी है वो पहली मम्मी थी दैट वाज टू बी स्कैंड ऑन 5 जनवरी 2005. सो अमंग ऑल 600 मम्मीज दोज वर फाउंड, दोज वर लिस्टेड, किंग मम्मी वाज द फर्स्ट टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ. जैसे डेथ के अंदर वो फर्स्ट था, डेथ के अंदर इट मीन्स आफ्टर डेथ हिज मम्मी वॉज स्कैंड फर्स्ट. पहली बार उस कोई मम्मी अगर स्कैन की जा रही, दैट इज ऑफ अ टट. एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन. जैसे लाइफ के अंदर भी वो क्या है, मूविंग रिगली अहेड, रिगली मीन्स रॉयली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन. जैसे अपनी कंट्री मैन के अंदर वो सभी से आगे था, रूलर के रूप में, किंग के रूप में, द फर्स्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री. And in death also, because his dead body is scanned, so he is the first person of his country to be scanned in CT scan. Now, a CT scan machine, a CT machine scanned the mummy head to toe. Now, for the first time, the results of CT scan, we have already discussed what was going on at that time. So the atmosphere at that time of when dead body was taken to the CT scan machine, we have already discussed. Now, when the CT scan happened, what type of images came out? That's the question. A CT scan machine scanned the mummy head to toe, head से लेकर के toe तक. CT scan machine ने मम्मी को स्कैन किया, creating 1700 digital. So question would come that what was the result of CT scan? So you will have to tell that 1700 digital X-ray images in cross section के अंदर 3 dimensional way के अंदर 1700 digital X-ray images were out there. टट्स हेड, टट के हेड की scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. इसकी जो intricate, important और complex structures हैं उनको दिखाने के लिए 0.62 millimeter slices हैं pieces के अंदर हेड को दिखाया गया. Takes on eerie detail in the resulting image, and that was giving an eerie or frightful, fearful, drowny जो डिटेल है वो दे रही थी. Because if you are making the small pieces of a head, you can imagine how fearful that was of a dead body. A team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets. एक जो पूरी टीम है स्पेशलिस्ट की रेडियोलॉजी के मामले में, फोरेंसिक्स के मामले में, दैट इज़ रिलेटेड टू क्राइम, एंड ऑल्सो एनाटोमी, दैट बिगेन टू प्रोब और एग्जामिन द सीक्रेट्स. उन सीक्रेट्स को ढूंढना शुरू कर दिया. दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ ए
गाइल्टेड ब्यूरियल सेरिन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसको कि एक विंग, पंखों वाली एक देवी है ऑफ गाइल्डेड ब्यूरियल, जो कि गाइल्ड की हुई सोने से बनाई हुई जो ब्यूरियल है, चैम्बर है, दैट इज कबर है। सेरिन मीन्स टेम्पल, टेम्पल रूपी ग्रेवयार्ड के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, इतने समय से प्रोटेक्ट कर रही थी। सो दैट CT scan results were these. Still continue in the CT results, but in the next video.